Hello students and welcome back again to a video tutorial, and in this lecture we are going to discuss about the different classes of echinodermates. In our first lecture of general features of echinodermates, we have discussed that echinodermates are commonly known as spiny skinned animal, and they are called so because they are having spines and pedicellary on their skin. Spines are hard calcium structure, whereas pedicellary are meant for clearing out all the debris from the skin. Then echinodermate are having secondary radial symmetry. They are the one which are having a very unique feature, that is water vascular system or umbilical system. And the general feature of echinodermate or body form of echinodermate, it varies from class to class. They could be star shape, they could be globular, they could be like cylindrical, or they could be like a plant. So, echinodermates, the members of echinodermates which are all marine and they all are benthic, they all are living on the surface of sea water. Excretory system was not very much developed, they were not having any brain, they were not having any heart. Reduced circulatory system was there, which we call hemal and perihemal system. It was of coelomic origin. From the development of coelom, there was formation of water vascular system as well, which was involved in locomotion, capture of food, transport of material, as well as respiration. So, let us start the classification of echinodermate, and echinodermates are classified into 5 classes depending upon their body form and depending upon their body features. There is a class of starfish, there is a class of beetle star. Starfish and beetle star are almost having same type of body form, they are star shaped, they are flat, just the position of arms are different. So, we will be having 2 different classes, and then there would be a class of globular echinodermate, which is your sea urchin. Then there would be a class of cylindrical echinodermate, which is sea cucumber, and the last class would be echinodermate which look like a plant, that is attached to the substratum as well, that is sea lily. So, we will not be learning very much detail of the classes, I will be just teaching you those points which have been generally asked in examination. So, let us start the classification of echinodermata. A total of 5 classes would be there, and name of classes is, the class 1 would be Asteroidea, and those are the one which is the class of starfish. Then there would be a class of beetle star, Ophioidea. Then we will be learning about a class of sea urchin, Echinoidea, a class of sea cucumber, Holothroidea, and last but not the least, a class of sea lily, which is Crinoidea. So, a total of 5 classes are present in phylum Echinodermata. So, one by one we will be dealing the features of these classes. There is no fun in telling that all the members are marine in nature. Let us start with the members of class Asteroidea. The body shape is, they are having a flat body shape and that is star like. Similarly, the body shape in Ophioidea, it would be flat and star like. So, what is difference between these two, we will be just discussing after that. Echinoidea is having a globular body shape. Holothroidea is having a cylindrical body shape, and in Crinoidea the arms are really branched, they are branched plant like. Alright, now let me first tell you the features of Asteroidea, then one by one I would be going on Ophioidea, Echinoidea, Holothroidea and Crinoidea. In Asteroidea, if I make a diagram here, you will write a statement that arms are
क्लोजली फ्यूज्ड विद सेंट्रल डिस्क, जो बॉडी के अंदर सेंट्रल डिस्क होगा उसके साथ उसकी जो आर्म्स है वो क्लोजली फ्यूज होती है, जबकि यहाँ पर जब पढ़ेंगे सेंट्रल डिस्क से जो आर्म होगी वो डिमार्केटेड होगी, वो थोड़ी दूर होगी और वो आराम से टूट जाती है। इनकी आर्म्स आराम से नहीं टूटती हैं। इफ़ आई मेक अ डायग्राम ऑफ स्टारफिश हियर, लेट मी मेक अ डायग्राम ऑफ सो कॉल्ड स्टारफिश, तो द आर्म्स आर वेरी मच क्लोजली फ्यूज विद द सेंट्रल डिस्क. They would be, I am not going to form spines here. The body would be having very spiny area. Then between the spine there would be pedicellary which are present, right? Between the spine there would be pedicellary which are present. At the terminal end of each arm there is a tentacle which is present, and over the tentacle there is a red color eye which is present. Over the tentacle there is a red color eye. There is a red color eye which is present over tentacles, and that is found mainly in starfish actually. Then आर्म्स के अंदर ग्रूव होते हैं बेटा. फॉर एग्जाम्पल ये जो ये एरिया यहाँ पर सेंट्रल डिस्क है और ये ग्रूव्स हैं, और इन ग्रूव्स के अंदर उनकी आर्म्स जा रही हैं, और इन्हीं के अंदर आपका रेडियल कैनाल और लेटरल कैनाल होगा. तो इन ग्रूव्स के लिए नाम रख देते हैं एम्बुलेकुलर ग्रूव्स. इन ग्रूव्स के लिए नाम रखते हैं एम्बुलेकुलर ग्रूव्स. ठीक है, ऑलराइट. अब हम दो अलग अलग एंड पढ़ लेते हैं, ओरल एंड पढ़ लेते हैं और एबोरल एंड पढ़ लेते हैं. कल आपको बताया था कि स्टारफिश के अंदर जो उसका माउथ होता है वो वेंट्रल पोजीशन पर होता है और एनस डोर्सल पोजीशन पर होता है. तो जिस तरफ माउथ होता है उस एंड को बोलते हैं ओरल एंड, और जिस तरफ एनस होता है उस एंड को बोलते हैं एब ओरल एंड. तो इन केस ऑफ स्टारफिश एट ओरल एंड माउथ, at oral end is having mouth and ambulacral groove, जबकि जो ab oral end होता है उसके पास होती है एनस and that sieve like plate which is meant for the entry of water. What we call that? Madreporite. Madreporite. So जो उनका madreporite होता है और जो उनका एनस होता है that is present at the aboral end. एक साल सवाल पूछा गया था कि जो madreporite होता है starfish में वो किसके पास लोकेटेड होता है. आंसर वुड बी दे आर लोकेटेड बिटवीन द आर्म्स विच आर टुवर्ड्स एनस. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, देन स्टारफिश में एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे. जब स्टारफिश के ऊपर अटैक वगैरह होता है तो स्टारफिश वॉलंटरली अपने आर्म को कट ऑफ कर देता है इन ऑर्डर टू फूल आउट द प्रे एंड इन ऑर्डर टू फूल आउट द प्रीडेटर एंड इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर. उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोटॉमी. तो जो ऑटोटॉमी होता है, ऑटोटॉमी इज द voluntarily breaking of arm to escape from the prey. It is well known in the member of Astroidea. It is well known in starfish. तो ऑटोटॉमी आप लिजर्ड वगैरह में भी सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो कि भाई लिजर्ड अपना टेल वगैरह काट के चला जाता है, फिर टेल रीजनरेट होता है. तो आई मस्ट मेंशन हियर दे आर हैविंग ए गुड पावर ऑफ रीजनरेशन. दे आर हैविंग ए गुड पावर ऑफ रीजनरेशन. Good power of regeneration, right? Regeneration. Then खाना वगैरह कैसे खाते हैं इसके बारे में डिस्कशन कल कर लिया था, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करता हूँ अब कि भाई वो सेमी डाइजेस्टेड फूड भी खा लेते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड भी खा लेते हैं और उनके अंदर एक्स्ट्रा डाइजेशन होता है. स्टारफिश की अगर लार्वा की बात करें, कल एक लार्वा पढ़ाया था, डेट इज बाई पिनेरिया लार्वा. डेट इज अ लार्वा ऑफ स्टारफिश. एक और लार्वा याद रख लेना, एंड ब्रेकियोलेरिया लार्वा. ब्रेकियोलेरिया लार्वा
तो बाइपिनेरिया एंड ब्रेक्यूलेरिया एंड डाइप्लूरेला एज वेल एज डाइप्लूरेला, दीज आर द लार्वा फाउंड इन क्लास ऑफ एस्ट्रोआइडिया। तो जो बाइपिनेरिया ब्रेक्यूलेरिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बाइपिनेरिया, समटाइम दे माइट आस्क यू अबाउट ब्रेक्यूलेरिया। अब डाइप्लूरेला भी याद रख लें, दीज आर द लार्वा ऑफ एस्ट्रोआइडिया। नाउ आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। तो दो एग्जाम्पल तो याद रख लेना, कॉमनली दोनों को स्टारफिश ही कहते हैं। वन इज यूर एस्ट्रियस एंड पेंटासिरोस राइट, बोथ आर नोन एज स्टारफिश। ओके, ये हो गया अबाउट द क्लास ऑफ स्टारफिश और एस्ट्रोआइडिया। अब आते हैं ऑफियूरोआइडिया के बारे में। तो अगर ये समझ गए आप तो अब बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को डिस्कस करना। ऑफियूरोआइडिया में जो आर्म्स हैं दे आर sharply demarcated from central disc। इसका मतलब ये हुआ इनकी आर्म्स फ्यूज नहीं होती है सेंट्रल डिस्क पर और सेंट्रल डिस्क से दूर होती है एक्चुअली आर्म्स। इट्स लाइक मेरा जो बॉडी का पार्ट है ये है लेट्स से सेंट्रल डिस्क। अगर मेरे यहाँ पर आप कुछ ये स्ट्रक्चर लगा के यहाँ पर आर्म फिट कर दो तो माई आर्म्स आर शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम सेंट्रल डिस्क एंड दैट वुड बी वेरी इजी टू ब्रेक। तो बीटल स्टार में आर्म्स वगैरह बहुत ईजिली ब्रेक हो जाती है। एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टू डिफरेंशिएट बिटवीन बीटल स्टार एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टारफिश। इसकी आर्म शार्पली डिमार्केटेड नहीं होती हैं, इसकी आर्म शार्पली डिमार्केटेड होती हैं। देन कुछ और चीज़ें आपने जो पढ़ भी ली है मैं उन्हीं को रिवाइज कर रहा हूँ। इनके अंदर जो एम्बुलेकुलर ग्रूव है वो विजिबल नहीं होता है और उसको हम एब्सेंट लेके चलते हैं। दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल एंड वी कॉल दैट एब्सेंट। तो इसका जो ओरल एंड होगा, ओरल एंड पर माउथ मिलेगा और मैड्रीपोराइड भी ओरल एंड पर होता है इनका। माउथ एंड मैड्रीपोराइड इज प्रेजेंट ऑन ओरल एंड। एनस कहाँ प्रेजेंट होगा सर? एनस तो एब्सेंट होता है इनमें। आपने कल बताया था कि इनके पास ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है। एंड एम्बुलेकुलर ग्रूव इज आल्सो एब्सेंट। एम्बुलेकुलर ग्रूव इज आल्सो एब्सेंट। वैसे मैं आपको बता दूं इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, तो वेल डेवलप नहीं होता पर उसको एब्सेंट पढ़ के चलते हैं। तो ऑफियूरोआइडिया के जो फीचर्स होते हैं, बॉडी फ्लैट एंड स्टार शेप होता है, आर्म शार्पली डिमार्केट हो जाता है, वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। ओरल एंड पर पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेरी गुड राइट। ओरल एंड पर माउथ एंड मैड्रीपोराइड होंगे, एबोरल एंड पर एम्बुलेकुलर ग्रूव होंगे। देयर इज नो फन इन टेलिंग, इनके पास पेडिसलरी नहीं होते हैं। कल बताया था कि पेडिसलरी इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन एस्ट्रोआइडिया एंड इकाइनोआइडिया। तो ऑफियूरोआइडिया डू नॉट हैव पेडिसलरी, द पेडिसलरी आर एब्सेंट ऑन देयर आर्म्स। ठीक है बेटा, ये भी मेंशन कर ही देता हूँ ना यहाँ पे, पेडिसिलरी आर एब्सेंट। अब इनका जो लार्वा होता है उसके लिए कल वर्ड यूज किया था ऑफियोप्लूटियस लार्वा। और फिर एग्जाम्पल brittle star, the larva is ophiopluteus larva. This is larva here, this is larva here. And the example of this class is Ophiothrix. Example, Ophiothrix. Ophiothrix is brittle star, as well as Ophiouria. Both are the name of brittle star. तो जो पहला क्लास होता है वो एस्ट्रोआइडिया है और एस्ट्रोआइडिया के अंदर स्टारफिश आ गए। स्टारफिश के बारे में याद रखना है, ऑटोटॉमी के बारे में प्लीज़। और दूसरा फीचर याद रखना है डेट आर्म्स आर नॉट शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम द बॉडी। ऑफियूरोआइडिया में ब्रिटल स्टार आते हैं, उनके तीन फीचर याद रखने हैं कि भाई उनके पास क्लोज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है,
उनके पास एम्बुलेकुलर ग्रूव नहीं होता है, पेडिसलरी नहीं होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी जो आर्म्स है वो शार्पली डिमार्केटेड होती है फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है बेटा। देन क्लास 3 के बारे में जब पढ़ेंगे इकाइनोआइडिया, और लेट्स कॉल दैट क्लास ऑफ सी अर्चिन। तो बॉडी बता दिया, इनका बॉडी जो है वो ग्लोबुलर होता है, इनके पास आर्म्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आर्म्स नहीं होंगे तो एम्बुलेकुलर ग्रूव भी नहीं होंगे, आर्म्स नहीं होंगे तो एम्बुलेकुलर ग्रूव भी नहीं होंगे। इनके बारे में एक फीचर याद रख लेना, दैट इज वर्थ मेंशनिंग हियर। इनका जो माउथ होता है इट कंसिस्ट ऑफ biting and chewing apparatus, a characteristic feature of member of Echinoidea, biting and chewing apparatus। और इस biting and chewing apparatus के लिए वर्ड यूज करते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न, एरिस्टोटल लैंटर्न। तो जो एरिस्टोटल लैंटर्न होता है दैट इज द biting and chewing apparatus present in sea urchin। I will repeat it again, Aristotle lantern is a biting and chewing apparatus which is present in sea urchin। जो Aristotle lantern होता है उसके अंदर 5 rows of teeth होती है, it consists of 5 rows of teeth। arms नहीं होते हैं, arms absent, so is ambulocular groove, pedicellary present होते हैं, पेडिसलरी एंड स्पाइन बोथ आर प्रेजेंट। पेडिसलरी 2 ही मेंबर्स के पास आपको मिलेंगे, क्या तो सी अर्चिन के पास मिलेंगे या स्टारफिश के पास मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो अच्छा, अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना मैं पढ़ाता आया हूँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ। आपको बता दिया था कि भाई जो जाइंटल बर्से हैं वो किस में काम करते हैं, जो आपके डर्मल ब्रांचे हैं वो किस में काम करते हैं, पेरिस्टोमियल गिल किसके पास होते हैं, या फिर आपका जो होलोथोरियोइडे की बात करें रेस्पिरेटरी क्लोकल ट्री किसके पास होता है, ये हम डिस्कस करके आए हैं, तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। द लार्वा ऑफ दिस क्लास, लार्वा ऑफ इकाइनोआइडिया इज इकाइनोप्लूथियस larva, and two classical example, Echinus is commonly known as sea urchin, ग्लोबुलर होता है, एक की हार्ट शेप भी होती है, उसे बोलते हैं इकाइनोकार्डियम। इकाइनोकार्डियम इज नोन एज हार्ट अर्चिन, इज नोन एज हार्ट अर्चिन। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास बोथ आर completed. What you have learned up to yet? There is a class of starfish, there is a class of beetle star, and there is a class of sea urchin. Starfish class is characterized by the presence of ambulocular groove, presence of pedicellary, and presence of fused arm. Autotomy is well known. Beetle star is characterized by demarcation of arms as well as presence of presence of an incomplete digestive tube. Then Echinoidea or class of sea urchin is characterized by a presence of Aristotle lantern, which is biting and chewing apparatus present around the mouth, within the mouth I will say in the buccal cavity, and that consists of 5 rows of teeth. Holothurioidea की बात करते हैं, cylindrical होते हैं, बॉडी के ऊपर टेंटाकल्स होंगे, आर्म्स वगैरह इसमें भी नहीं होंगी, एम्बुलेकुलर ग्रूव इसमें भी नहीं होंगे। सो एम्बुलेकुलर ग्रूव आर एब्सेंट इन ऑफियूरोइडिया, एब्सेंट इन इकाइनोआइडिया and absent in holothurioidea. तो arms and ambulocular groove are absent. ठीक है, पेडिसिलरी भी एब्सेंट होंगे, पेडिसिलरी भी एब्सेंट होंगे, और स्पाइन्स भी एब्सेंट होंगे। पेडिसिलरी एंड स्पाइन्स बोथ आर एब्सेंट। इनके बारे में याद रख लेना, एक तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ही बता दिया था मैंने आपको कि भाई इनके पास क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री होता है जो एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर देता है। जब भी इनके ऊपर कोई अटैक करता है तो ये सम पार्ट ऑफ बॉडी, सम पार्ट ऑफ देयर विसल ऑर्गन उसके ऊपर पोल कर देते हैं, और लेटर ऑन दैट पार्ट कुड बी इनगल्फ्ड। तो जो अपॉन थ्रेटिंग जो पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन उसके ऊपर, देखो वो तो डाइजेशन में कर रहा था, और वो जो भी पार्ट उसने डाइजेशन में बाहर इवर्ट किया था स्टमक का गैस्ट्रिक जूस, वो अंदर नहीं लिया था। इनके अंदर क्या होता है, सम पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ बीन थ्रोन आउट
एंड लेटर ऑन दोज पार्ट कुड बी इनगल्फ एज वेल। तो इस वर्ड, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं एक्सविसरेशन। सो दीज एनिमल आर वेल नोन, these animal are well known to show exvisceration. And what is exvisceration? They puke out visceral organ. Obviously this is again a mode of defense, right? Then आप एक और चीज़ याद रख लेना, इनका जो लार्वा होता है वो बताया था ऑरिक्यूलेरिया लार्वा, डेट वाज ऑरिक्यूलेरिया लार्वा। और जब तक हेमिकोर्डेटा को आपने कोर्डेटा से बाहर नहीं निकाला था, तब तक ऑरिक्यूलेरिया लार्वा को कंसिडर किया जाता था एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोर्डेट एंड नॉन कोर्डेट। ये पुराना कंसेप्ट है। पुराने कंसेप्ट में हेमिकोर्डेटा को स्टोमाकोड की कन्फ्यूज़न की वजह से कोर्डेट में क्लासीफाई कर दिया था। तो उस वक्त जो ऑरिक्यूलेरिया लार्वा डेट वाज बीन कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिंग लिंक। फिर उसके बाद पता चला स्टोमाकोड तो अलग होती है नोटोकोड से, तो हेमिकोर्डेट को कोर्डेट से बाहर निकाल के बिठाया। फिर जो वो बुलेनोग्लोसस जो भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, अब उसको हम कनेक्टिंग लिंक पढ़ के जाते हैं। एंड क्लासिकल एग्जाम्पल कुकुमेरिया, सी कुकम्बर एंड होलोथूरिया, बोथ आर कॉमनली नोन एज सी कुकम्बर। तो आप कुकम्बर की जैसी शेप होती है तो शेप याद रह जाएगी, कुकम्बर में आर्म्स नहीं होते हैं तो वो याद हो जाएगा, एम्बुलेकुलर ग्रूव नहीं होते हैं, बस याद रखना कुकम्बर खुद अपने विसरल ऑर्गन को बाहर फेंकता रहता है, और उसके पास रेस्पिरेटरी क्लोकल ट्री होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इट इज़ हैविंग रेस्पिरेटरी क्लोकल ट्री। जो लास्ट वाला क्लास होता है वो होता है क्राइनोआइडिया। इसके जो मेंबर होते हैं दे आर अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम, ठीक है, इसलिए प्लांट लाइक कहते हैं। इसकी जो आर्म्स होती है वो हाईली ब्रांच्ड होती हैं, हाईली ब्रांच्ड। इसके अंदर एम्बुलेकुलर ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। तो एम्बुलेकुलर ग्रूव अगर बात करें तो सिर्फ फर्स्ट क्लास एंड फिफ्थ क्लास में होता है, बाकी में एम्बुलेकुलर ग्रूव नहीं होते हैं। एम्बुलेकुलर ग्रूव आर सिलिएटेड एंड मोर सिलेंड्रिकल, सिलिएटेड एंड मोर सिलेंड्रिकल। देन इनके बारे में और याद रख लेना, इनके पास स्पाइंस तो इसके पास भी नहीं थी, स्पाइंस नहीं होते, पेडिसिलरी नहीं होते, दिस बोथ आर एब्सेंट। इवन एक मैं शकस का भी कंसेप्ट बताया था आपको, जो आपकी ट्यूब फीट है उसके पास शकस कहाँ कहाँ नहीं होते, ऑफियूरोआइडिया में शकस नहीं होते और क्राइनोआइडिया में शकस नहीं होते, ठीक है बेटा। इनका जो लार्वा होता है, द लार्वा इज डोलियोलेरिया लार्वा, द लार्वा इज डोलियोलेरिया लार्वा। एंड द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एंटीडोन, and antidon is commonly known as, yes, it is commonly known as sea lily, it is commonly known as sea lily। तो बच्चे ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो जब आप इकाइनोडर्मेट्स को क्लासीफाई कर देते हैं, इकाइनोडर्मेट्स को 5 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। एक क्लास होता है स्टारफिश का, बीटल स्टार, सी अर्चिन, सी कुकम्बर एंड सी लिली। जो स्टारफिश का क्लास है उसका फीचर्स याद रखना, आर्म उसकी शार्पली फ्यूज होती है, एम्बुलेकुलर ग्रूव होते हैं, मैडीपोलाइट की पोजीशन याद रख लेना। एक और चीज़ मैडीपोलाइट से याद आया, द क्लास ऑफ एनिमल जिसके अंदर मैडीपोलाइट नहीं होता है, द क्लास ऑफ एनिमल विच डू नॉट हैव ए मैडीपोलाइट, दैट इज क्राइनोआइडिया। मैडीपोलाइट आर एब्सेंट, मैडीपोलाइट आर एब्सेंट। और जो सी कुकम्बर होता है उसका मैडीपोलाइट इंटरनल हो जाता है। तो अगर मैडीपोलाइट को लेके भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैडीपोलाइट इज इंटरनल, मैडीपोलाइट इज इंटरनल इन केस ऑफ सी कुकम्बर एंड दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ क्राइनोआइडिया। मैडीपोलाइट इसमें जो है तीनों में मैडीपोलाइट एक्सटर्नल होगा, हियर देयर इज इंटरनल मैडीपोलाइट एंड देयर वुड बी मैडीपोलाइट वुड बी एब्सेंट। एक फीचर ये याद रख लेना। So here we complete your अच्छा, Aristotle lantern is a classical feature of Echinodermata and respiratory is a classic, Aristotle lantern is a classical feature of Echinoidea and this
respiratory cloacal tree is a classical feature of holothuroidea. Exvisceration is also, or evisceration भी कह देते हैं इसको, simply evisceration, proper term should be exvisceration, is a classical feature of holothuroidea. So here we complete our syllabus of upcoming test, or here we complete up to Phylum Echinodermata. Now you will be getting assignment, solve that assignment, attempt all the test, attempt all the assignment. जितने भी doubts हैं please do ask. I wish you very good luck for your test. Thank you.